Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start our next chapter in the series of NCERT Ancient series, in which we are going to cover the questions, MCQ questions of both old as well as the new NCERTs. So our today chapter is going to be of the Vedic age. Now in this Vedic age we are going to cover the Rig Vedic age questions as well as the later Vedic age questions. Now the questions have been divided on the pretext of polity, then economy, society. So the questions are divided in these parts so that it is easy for you to understand the chronology. Now before starting the chapter, I would request you to join our membership of this channel, as it would support me greatly to produce more content for you. The cost of the membership is just 29 rupees per month, in which many of the facilities and many of the benefits are available, such as I will post member only videos in which current questions as well as static very important questions will be uploaded. Other than that, 5 daily MCQs will be uploaded on the 5 daily MCQs post will also be uploaded on the channel. So there are many other perquisites as well. You can join the channel, you can just visit the join page and you can see the benefits there. So let's start with the questions of this chapter. Now the first question is, now we are going to start it in a very phase wise manner. It means सबसे पहले हम अराइवल ऑफ आर्यन देखेंगे, देन हम उनका पॉलिटिकल एक्सपेंशन देखेंगे, देन हम उसके इकोनॉमी के एस्पेक्ट को देखेंगे वैदिक एज के, देन सोसाइटी के एस्पेक्ट को देखेंगे. सो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो बहुत होलिस्टिकली आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा. ठीक है. सो अगर मैं आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश करूं तो वी नो दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन में इट वाज अ काइंड ऑफ ब्रॉन्ज एज. नाउ वेरियस फैक्टर्स वेयर देयर विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. Now, Indus Valley civilization was mainly concentrated in the northwestern part of the country. For example, Punjab, modern day Pakistan, Sindh, वहाँ तक ये Indus Valley civilization extend करती थी. Now, after the decline of the Indus Valley civilization, it is believed that the Aryans came from the region of Central Asia. Now, this region of Central Asia was अराउंड द एरिया ऑफ कैस्पियन सी. अभी कैस्पियन सी के बॉर्डर्स कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम ज्योग्राफी भी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा. दैट इज़ तुर्कमेनिस्तान, दैट इज़ अजरबैजान, देन देयर इज़ रशिया, फिर हमारा ईरान, then there is Kazakhstan. So these are the 5 countries that borders the area around the Caspian Sea, and it is believed that Indo-Aryans, जो आर्यंस थे वो इस कैस्पियन सी के सराउंडिंग एरिया से ही इंडिया में एंटर किए थे. ठीक है. Now let's see the question here. With reference to the advent of Indo-Aryans in India, which of the following statement is or are correct? They entered the Indian subcontinent from the northwest. Absolutely correct. पंजाब वॉज द फर्स्ट परमानेंट होम ऑफ द इंडो आर्यंस. अभी जैसे मैंने बताया, दे ट्रांसफर्ड और माइग्रेटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ कैस्पियन सी. कैस्पियन सी से वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आए एंड उस रीजन में आए विच इज़ नोन एज सप्त सिंधु. सप्त सिंधु या सप्त सिंधु बोलते थे इसको अर्लियर टाइम्स में. एंड व्हाट डिड द सप्त सिंधु मीन्स? इट मेंट द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. अभी यू शुड नो दैट पंजाब का नाम कैसे पड़ा है. तो पंजाब का मतलब होता है पंजनाद. पंज मतलब 5, नाद मतलब नदी. ठीक है. द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, दैट इज इंडस, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज. ठीक है. नाउ इसमें काबुल भी एक रिवर थी एंड एक और रिवर थी. ठीक है. ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. तो वो 7 रिवर्स के कॉम्बिनेशन से द लैंड वॉज नोन एज सप्त सिंधु. ठीक है. सो यहाँ पे बोथ 1 and 2 जो दोनों स्टेटमेंट दिए हमारे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन लिंक बिटवीन इंडो आर्यंस एंड देयर कंटेम्पररी ट्राइब्स लिविंग इन यूरोप एंड एशिया. नाउ व्हाट कैन बी अ कॉमन लिंक? सो लैंग्वेज ऑलवेज सर्व्स एज अ कॉमन लिंक बिकॉज इट इज़ आइडेंटिकल. ठीक है. सो लैंग्वेज हमारा करेक्ट आंसर है. वाई? बिकॉज द लैंग्वेज, द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज spread later into different part of the world such as Europe, Iran and parts of the Indian subcontinent. अगर मैं लैंग्वेज का एग्जांपल दूँ तो लैंग्वेज जो होती है हमारी
इट इज़ बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट। एंड अगर मैं आपको स्क्रिप्ट की बात करूं, सो दिस स्क्रिप्ट का अगर एक मैं प्राइम एग्जांपल दूं, विच स्क्रिप्ट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट विच इज़ फाउंड इन इंडिया। सो हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को देखा है। अशोका की एक अरामिक स्क्रिप्ट में वेरियस इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। सो दिस अरामिक स्क्रिप्ट वॉज बेस्ड ऑन द ग्रीक स्क्रिप्ट। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ लैंग्वेज वॉज इंटीग्रेटेड। जो फॉरेन लैंग्वेज होती थी उस टाइम पे एंड जो हमारी इंडियन लैंग्वेज की, इंडियन कॉन्टिनेंट की लैंग्वेजेस होती थी, दैट वॉज वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ओके, सो लैंग्वेज प्रोवाइडेड एज अ कॉमन लिंक। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन का है एंड ये क्वेश्चन चैप्टर 3 क्लास 9 ओल्ड एंड एनसीईआरटी का है। तो लेट्स सी दिस। नाउ वैदिक हिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ history of arts in India. Next is Vedic hymns were poems for gods recited and passed on from generation to generation. Now, if I talk about these inscriptions, if I talk about the Vedic hymns, now if I talk about the Vedic age as a whole, so चार तरह की वेद थी। एक तो ऋग्वेदा, सामवेद, then came the यजुर्वेद, then it was अथर्ववेद। Now ऋग वेदा was the oldest and अगर मैं shortest की बात करूँ तो वो थी सामवेद। सामवेद is the shortest of the Vedas। ठीक है, सो पहला assertion हमारा क्या है कि the Vedic hymns is the most important source of reconstruction of history of arts in India। Absolutely correct। Now these Vedic hymns were composed by the Indo-Aryans। नाउ इंडो आर्यंस ने ये लैंग्वेज कहाँ डेवलप की थी? इन द रीजन अराउंड द सप्त सिंधु, जो पंजाब का रीजन था। ठीक है, इन सारे हिम्स में क्या होता था कि देयर वॉज पोएम्स विच वे आर मेड फॉर गॉड्स एंड दीज लेटर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नाउ दीज हिम्स ऑल्सो गिव वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द पॉलिटी and about the geography of the India. Okay, just a second. Now the next question is, let's start the next question. Now, an inscription of the 14th century BC which describes the Vedic god has been found in. So this is the famous Bhogaskoi inscription. Now this inscription is of 14th century BC. Now this Bhogaskoi inscription belongs and describes the Vedic gods. Now ये कौन से Vedic gods थे जिसका description था Bhogaskoi inscription में? So the name of god was Indra, Varun, Mitra and Nasatya। ओके, दीज वे आर द 4 गॉड्स। नाउ अगर मैं बोलूँ एलिमिनेट करने को कौन सी नहीं थे, तो अग्नि, द गॉड अग्नि विच वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन इंडिया, दैट वॉज नॉट मैंशनड इन दी बोगस्कोई इंस्क्रिप्शन। इंद्र, वरुण, मित्र एंड नस्तस्य वॉज मैंशनड। सो बोगस्कोई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी में मैंशनड है। नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अराइवल्स ऑफ आर्यन इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, ऑन द वे टू इंडिया द आर्यंस फर्स्ट अपीयर्ड इन अफगानिस्तान। अब आप मुझे एक बात बताओ, आर्यंस आए थे कैस्पियन सी के एरिया से। कैस्पियन सी का एरिया कौन सा है? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का रीजन। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन सी है? इट इज़ कजाकिस्तान, इट इज़ तुर्कमेनिस्तान, इट इज़ अजरबैजान। यही तो सारी कंट्रीज़ है ना। अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी को कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और द एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना है, तो क्या वो पहले अफ़गानिस्तान आएगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारा अफ़गानिस्तान है तो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ईरान, एंड देन ईरान से फर्दर बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल। ठीक है, सो पहले अफ़गानिस्तान में अपीयर नहीं होंगे, पहले ईरान में अपीयर होंगे। ईरान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। सो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज कैसाइट इंस्क्रिप्शन ऑफ 1600 BC and मितानी इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC फाउंड इन द वेस्टर्न एशिया सजेस्ट
द वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडो आर्यंस। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है। ठीक है, सो अगर इस क्वेश्चन में हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वी हैव टू मेंशन अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्यंस इन इंडिया। आर्यंस वेयर ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द यूरेशियन रीजन। बिल्कुल सही है। यूरेशिया मतलब क्या? एशिया एंड यूरोप। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडो आर्यंस। नाउ these Indo-Aryans belonged to the area of Central Asia. अब सेंट्रल एशिया में मेनली स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स इज द एरिया ऑफ ग्रासलैंड इज नॉट वेल नोन फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, सो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन उनका था ही नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? पैस्टोरलिज्म। तभी तो जिनको हिंदी में खाना बदोश भी बोलते हैं, दैट दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अगर उनके पास एग्रीकल्चर एज अ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन या मेन ऑक्यूपेशन होता तो दे वुड हैव डिसाइडेड इन देयर ओन रीजन। वाई वुड दे कम टू इंडिया? देयर वेर नॉट फेवरेबल कंडीशंस। ग्रासलैंड का एरिया, टुंड्रा टेम्परेचर्स तो नहीं होते हैं, बट हाई वेरी लो टेम्परेचर्स होते हैं। ग्रासलैंड का एरिया है, ग्रासलैंड एरिया इज़ नॉट मोस्टली फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ओके, सो पैस्टोरलिज्म वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, 1 and 3 स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ दे क्रिएटेड ऋग्वेदा, द अर्लिएस्ट स्पेसिमेन ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। तो 1 and 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके पहले ये आंसर खुद से कर लिया होगा। अगर आपने सही किया है तो वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ देयर इज सिमिलैरिटी इन अवेस्ता एंड द ऋग्वेदा, फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता रिलेट्स टू। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? ऋग्वेदा इज एन एंशियंट एंड द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। एंड हमने बात की about the Indo-Aryans. Now Indo-Aryans came from which region? They came from the region of Central Asia. ठीक है, अभी हिस्ट्री को भूल जाओ, ज्योग्राफी का एस्पेक्ट देखो। इजराइल कौन से एरिया में है? वेस्ट एशिया में है। इजराइल इज़ नॉट एन आंसर। इजिप्ट किधर है? इजिप्ट तो एरिया ऑफ वेस्ट एशिया हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इंडिया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो गया। तो अब मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा ईरान। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए दैट अवेस्टा इज रिलेटेड टू ईरान एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द ईरानियन लैंग्वेज एंड इट इज़ द सैक्रेड बुक ऑफ द ज़ोरोएस्ट्रियंस। ठीक है, एंड इट कंटेन्स वेरी सिमिलैरिटी विद द ऋग्वेदा। ठीक है, सो ईरान इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, one hymn of Rig Veda contains a dialogue between sage Vishwamitra and two pious rivers. Which among the following are these two rivers? Now, ये दोनों रिवर का नाम क्या था? It is ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, नाउ विश्वामित्र को ऐसा माना जाता है कि द विश्वामित्र हैड डायलॉग एंड इट इज मेंशन्ड इन द ऋग वेदा। ठीक है, सो ब्यास एंड सतलुज आर टू रिवर्स। अगर मैं एंशियंट रिवर्स की बात करूं तो रिवर पारुशनी है, जिसका एंशियंट नाम रावी था, एंड देयर इज अ रिवर नोन एज अस्किनी विच इज नोन एज चेनाब। ठीक है, एक रिवर होती थी नदी तमा। दिस नदी तमा रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड सरस्वती ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, सरस्वती रिवर ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, सो ये सम नेम ऑफ द रिवर्स यू शुड नो। ठीक है, इसका आंसर ब्यास एंड सतलुज है। Let's now move to the next question. Consider the following statement. In the Vedic literature, the term Arya denotes noble man. Next is Dasayus were the original inhabitants of India. Now, absolutely correct. The Rig-Vedic people were termed as Arya, and the Arya term denoted a noble man or a superior race.
आर्य टर्म का मतलब सुपीरियर रेस भी होता था, ठीक है। एंड सुपीरियर रेस का क्या मतलब है? फेयर कलर, सो दे वेयर फेयर कलर्ड पीपल, ठीक है। नाउ द सायूज वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ दिस दसायुज के बारे में आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि दीज डिड नॉट परफॉर्म्ड वैदिक सैक्रिफाइसेस एंड ऑल्सो दे ऑल्सो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। सो इफ द करेक्ट आंसर इज आस्क्ड, तो दोनों के दोनों बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is incorrectly matched? Now, Agni was known as god of fire, absolutely correct. Indra was known as warrior god. Soma was a god of plant, तो incorrectly match कौन सा है? कोई भी नहीं, ठीक है। So none of these is the correct answer. Next question देखते हैं. Now let us start the questions of the political organizations during the Vedic period. Now, with reference to the political organization in the Rig Vedic age, which of the following statement is or are incorrect? Now, we have to mention the incorrect statement. Now, Purohit was the most political functionary in the Rig Vedic age. Next, क्या है हमारा कि the concept of territorial administration started from the Rig Vedic age. Now, if I talk about the first statement, so the first statement is absolutely correct because the Purohit, he served as an advisor to the king, ठीक है। so because he was the advisor to the king, so he was the most important political functionary during that time, ठीक है। next है the concept of territorial administration started from the Rig Vedic age. Now there was no system of territorial administration during the Rig Vedic age. Now Rig Vedic age is also known as the early Vedic age. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के स्लाइट इम्पैक्ट या स्लाइट एस्पेक्ट्स वी आर सीन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। ऋग वैदिक इज ऑल्सो नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड, इस पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. अमंग द ट्राइबल असेंबलीज ऑफ द ऋग वैदिक आर्यंस विच वॉज द मोस्ट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल? नाउ Sabha and Samiti were the two important assemblies during tribal assembly during the Rig Vedic Aryans, ठीक है, of which Samiti was the most accessible to the common people, ठीक है। जहाँ तक मैं बात करूँ सभा की, तो मोस्ट एल्डर या मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन्स ऑफ द विलेज और द लोकेलिटी वेयर इंक्लूडेड इन दी सभा। अदर दैन डैट सभा एंड समिति, ये जो दो ट्राइबल कमिटीज थी, दोनों के पास में जुडिशियल पावर्स होती थी, ये भी आप फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोथ ऑफ दीज ऑल्सो हैव दी जुडिशियल पावर्स एज वेल। तो द ट्राइबल असेंबली जिसके पास एक्सेस था कॉमन पीपल का, दैट इज समिति, ठीक है। सभा वॉज एन इलाइट टाइप ऑफ कमिटी। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव टू मेंशन मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. Now Vrajapati, now he was the head of the pastures ground, ठीक है। एंड इसका अनदर फंक्शन क्या था कि दैट ही सपोर्टेड द किंग व्हेन देयर वाज सिचुएशन ऑफ वॉर। नेक्स्ट है ग्रामानीज, दीज ग्रामानीज वेयर द हेड ऑफ द फाइटिंग होल्डर्स, ठीक है। नाउ दे हेडेड अ स्मॉल फाइटिंग यूनिट। सेनानी आपको पता होना चाहिए, सेनानी तो इजी है, ही वॉज द हेड ऑफ द आर्मी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कुलापास, तो दीज वेयर द हेड ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ऋग वैदिक आर्यंस. नाउ करेक्ट स्टेटमेंट मेंशन करना में, द ऋग वेदा डज नॉट मेंशन ऑफ एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. एज आई टोल्ड यू कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं होता था ऋग वेदा के टाइम पे, तो कैसे कोई ऑफिसर हो सकता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस एंड टैक्सेस? तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है.
नाउ इन ऋग वैदिक पीरियड द किंग्स पोस्ट वॉज हेरिडिटरी, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है ये भी कि जो किंग की पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, दैट इज़ वाई फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ व्हाट वाज द मेन फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑफिसर कॉल्ड संग्रहिता इन लेटर वैदिक एजेस। अब हमारा लेटर वैदिक एजेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सो लेटर वैदिक एजेस में मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डिफाइन हो गए थे एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी शुरू हो गया था। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वाज आल्सो देयर एंड ये कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कौन करता था, तो इट वाज परफॉर्म्ड बाय दिस संग्रहित। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स। सो ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली मैच पेयर हमें बताना है। नाउ राजसूया, दीज वेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइसेस के बारे में बात की गई है इस क्वेश्चन में। कौन सा सेक्रीफाइस इज करेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। नाउ राजसूया कन्फर्ड सुप्रीम पावर टू द किंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अश्वमेधा में क्या होता था, एक हॉर्स को चैरियट के साथ खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक वो हॉर्स भागता था दैट एरिया यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग, जिसका वो हॉर्स होता था। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाजपेया इज ब्लेस्ड किंग विथ अ मेल चाइल्ड, नो दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज वाजपेया वॉज अ टाइप ऑफ चैरियट रेस, ठीक है। अभी एक रॉयल चैरियट होता था जिसमें कि वो भागता था एंड मतलब एक तरह की रेस होती थी वो। अश्वमेधा में अश्व का क्या मतलब होता था, अश्व मीन्स हॉर्स, तो वहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो अश्वमेधा इज रिलेटेड टू हॉर्स। वाजपेयी में चैरियट होता था, चैरियट रेस होती थी, प्रॉपर 3 या 4 किंग्स आपस में रेस करते थे अपने चैरियट्स पे और जो भी जीतता था उसको गिफ्ट्स मिलती थी, ठीक है। तो दिस वाजपेयी इज इनकरेक्टली मैंशनड हियर, सो सी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, consider the following statement regarding the changes in the political organization during the later stage. Now women were no longer allowed to participate in the sabha and it was dominated by the princes and rich nobles. अभी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो द स्टेटस ऑफ वुमेन, एक बात आप ध्यान रखना कि द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज वेरी गुड और एट अ बेटर पेस एज कंपेयर टू द लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक पीरियड में या अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन वॉज वेरी गुड एज कंपेयर टू द लेटर वैदिक एज। सो पहले वुमेन्स वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दी 2 ट्राइबल कमिटीज दैट इज सभा एंड समिति, बट वॉट हैपेंड इन द लेटर वैदिक पीरियड वॉज कि दे वेयर नो लॉन्गर अलाउड टू पार्टिसिपेट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द किंग स्टार्टेड टू पोजेस लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर टेरिटरीज। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। वाई इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि किंग के पास अभी भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, ही हैज़ टू रिलाई ऑन द ट्राइबल चीफ्स जो कि अपनी आर्मी को खुद रेगुलेट करते थे। तो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, द डोमिनेंट ट्राइब बिकेम आइडेंटिकल टू द टेरिटरी इन विच दे डिसाइडेड, तो जेनरिक स्टेटमेंट है, ये सही है। सो कौन सा स्टेटमेंट हमारा नॉट करेक्ट है, ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेट्स नाउ मूव टू द अदर एस्पेक्ट दैट इज द सोसाइटी। Now, which among the following factor played the most important role in the creation of social division during the Vedic age? Now, conquest of indigenous inhabitants by the Aryans. Obviously, अभी हमने देखा कि the Sayus were the people who were the original inhabitants of India and वो वैदिक sacrifices भी नहीं करते थे। जब वो वैदिक sacrifices नहीं करते थे एंड आर्यंस जिनको कि अदर नाम जिनका क्या होता था, नोबल मैन भी जिनको बोला जाता था, दे केम टू इंडिया। सो वो क्या करेंगे, वो कॉन्क्वेस्ट ही तो करेंगे ना इंडिजीनियस इनहैबिटेंट्स को। तो सोशल डिवीजन का क्या हो गया कि आर्यंस दे यूज टू बिलीव देमसेल्व्स एज अ सुपीरियर क्लास एंड इंडियन पीपल जो इंडिया के इनहैबिटेंट थे दे वेयर नोन एज द दसायूज। सो दसायूज एंड आर्यंस में एक सोशल डिवाइड हो गया, तो ये कॉन्क्वेस्ट की वजह से ही हुआ, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 10th मंडला चैप्टर ऑफ द ऋग्वेदा कंटेन्स द डिफरेंस ऑफ टू द शूद्रा। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द वैदिक गॉड अग्नि एक्टेड एज अ इंटरमीडियरी ऑफ गॉड इन वन हैंड एंड पीपल ऑन द अनदर। नाउ अग्नि की आहुति दी जाती है, आपको पता है, कोई भी यज्ञ होता है तो
अग्नि को क्या बिलीव किया जाता है कि यहाँ से जो लोग अग्नि में आहुति दे रहे हैं, अग्नि एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएरी एंड देन जो आहुति हम देते हैं वो डायरेक्टली इट गोज टू गॉड। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो इनकरेक्ट तो ये हो ही नहीं सकता। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ओनली 3 ही तो होगा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सेकंड तो गलत हो ही नहीं सकता, सेकंड तो हमारा करेक्ट है। नाउ चाइल्ड मैरिज वॉज वेरी कॉमन इन द ऋग्वैदिक एरा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्दो द कंडीशंस ऑफ द वुमेन वॉज वेरी बैड बट चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट देयर इन द ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अगर थर्ड इनकरेक्ट है तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, किन्होंने कंपोज किया था? ही वॉज द सेज विश्वामित्र दैट कंपोज द गायत्री मंत्र। एंड गायत्री मंत्र किनको डेडिकेट होता है? इट इज़ डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ठीक है, हमारा विश्वामित्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। नाउ ये क्वेश्चन जो हमारा दिस इज बेस्ड ऑन द असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। नाउ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द ग्रोइंग कल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस इनॉर्मसली एडेड द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द ब्राह्मणास। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ब्राह्मणास वेयर द knowledgeable people. Now these brahmanas played utmost role and important role in performing the Vedic sacrifices. तो later Vedic age में sacrifices बहुत important role play करते थे and sacrifice और ज़्यादा complex and intense होते चले गए। ओके, सो assertion हमारा correct है। Next is they conducted rituals and sacrifices for their clients and officiated the festival associated with agricultural operations. तो बिल्कुल A and R absolutely correct है and R is the correct explanation of A. Next है हमारा, we have to mention the incorrectly matched pair. Now Brahmana known for conducting ritual, correct. Kshatriya were known for farming. No, they were not known for farming. ठीक है, they were held in the post of administration and protecting areas. ठीक है, फार्मिंग में नहीं इंक्लूड होते थे। वैश्य ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे और शूद्रा का काम क्या था? सर्विस ऑफ द अदर वर्णास। ठीक है, क्षत्रिय इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन। नाउ वुमेन वेयर थॉट टू बी इन्फीरियर एंड सबऑर्डिनेट टू द मेन। करेक्ट है, जेनेरिक स्टेटमेंट है। दे वेयर बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज इन रिलेटेड इन द सभा। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सभा में पार्टिसिपेशन वुमेन का होता था, लेकिन वो कब होता था? वो होता था अर्ली वैदिक टाइम्स या फिर ऋग्वैदिक टाइम्स में होता था। लेटर वैदिक एरा में वुमेन की कंडीशन इट डिटोरिएटेड एंड उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, सभा में भी नहीं मिलता था एंड समिति में भी नहीं मिलता था। ठीक है, सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट। अब हम करेंगे अपने इकोनॉमी वाला पार्ट। नाउ विच वॉज द मेन सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द इंडो आर्यंस? सो इट वॉज द खेत्री माइंस ऑफ राजस्थान। ये हमने पहले भी डील किया है इसको। ठीक है, इंडस वैली में तो खेत्री में माइंस वॉज मेनली फॉर कॉपर। अगर मैं बात करूँ कर्नाटका में देर इज़ अ माइन विच इज़ कॉल्ड कोलार माइंस। सो कोलार माइंस इज़ फेमस फॉर गोल्ड। ठीक है, इसका खेत्री माइंस सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वी हैव टू मेंशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। नाउ हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडो आर्यंस। अभी मैंने बताया कि हंटिंग एंड गैदरिंग चीफ ऑक्यूपेशन नहीं थी, इट वॉज पैस्टोरलिज्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है। इन लेटर वैदिक पीरियड द राइस एंड व्हीट बिकेम द चीफ क्रॉप्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। वुडन प्लॉशेयर वे यूज बाय द फार्मर्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। एब्सोल्युटली करेक्ट, वुड का यूज होता था। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द वैदिक टेक्स्ट द टर्म अयास एंड श्यामा डिनोट्स। नो अब ये अयास को कॉपर बोलते थे एंड श्यामा को आयरन बोलते थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। श्यामा या कृष्ण अयास भी बोलते थे। सो कृष्ण अयास वॉज आयरन एंड अयास वॉज कॉपर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है
which type of pottery is or are associated with the archaeological sites of the Indo-Aryans? Which of the pottery? So both painted grey ware and black and red ware, both were used by the Indo-Aryans. Now अगर मैं बात करूँ people belonging from the later Vedic period, so the people of the later Vedic period, they were acquainted or they knew about the 4 types of pottery. 4 type of pottery कौन सी थी? ब्लैक एंड रेड वेयर थी, देन इट वॉज पेंटेड ग्रे वेयर, देन इट वॉज ब्लैक स्लिप्ड वेयर एंड नेक्स्ट वॉज द रेड वेयर. एंड इन सभी के सभी का इंस्टेंस या प्रेजेंस मिलता है वेस्ट यूपी के एरिया में. ठीक है, सो बी हमारा करेक्ट आंसर है और ये चारों के भी नाम आपको ध्यान में रखने हैं. ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding the state of economy during the Rig Vedic age. Now they used plowshare made up of wood for agriculture. अभी देखा हमने, करेक्ट है ये. They were acquainted with sowing, harvesting, threshing and knew about the different seasons. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. So both 1 and 2 हमारा करेक्ट आंसर है. Next is the term व्रीहि in the Vedic text is referred to. तो व्रीहि is known as rice. ठीक है, एंड ये राइस का रिमेन्स का मिला है, हस्तिनापुर में मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है. दिस 35. एग्रीकल्चर एंड वेरियस क्राफ्ट इनेबल द लेटर वैदिक पीपल टू लिव अ सेटल्ड लाइफ. हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है. दे गेव अप पैस्टरलिस्ट एंड सेमी नोमैडिक प्रैक्टिस इन द ऋग वैदिक एज. गेव अप कहाँ किया था भाई, वो तो पैस्टरलिज्म के लिए जाने जाते थे, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया ना. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है यहाँ पे. Next is iron was the first metal used by the Vedic period. Now Vedic people, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, वैदिक पीपल ने पहले आयरन का यूज़ नहीं किया था. किन्होंने किया था? ठीक है, और भी बहुत सारे थे. ठीक है, वैदिक पीपल ने पहले आयरन का यूज़ नहीं किया था. आयरन का फर्स्ट यूज़ लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, वैदिक पीपल में नहीं. वैदिक पीपल यूज्ड वेरियस मेटल सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड. ये ध्यान रखना, आयरन वॉज यूज ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं यूज होता था वो. ओके, सो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ओनली 3. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ सम ऑफ द मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद द चैप्टर वुड एंड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट द सैल्वेशन? नाउ द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द उपनिषद्स. ठीक है, उपनिषद हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग वेदा वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ. सो दिस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट एट द बैंक्स ऑफ रिवर पारोशनी. ठीक है, एंड पारोशनी का मॉडर्न नेम क्या है? रावी रिवर पे, रावी रिवर है. ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर. Let's now move to the next question. Which of the following river among the following known referred as the Matetama, Devitama, Naditama? मैंने आपको पहले बताया, this river was known as सरस्वती river. ठीक है, मैंने explanation में पहले बता दिया था. And this question has been also been asked in the UPPSC examination. Next question. Which of the following rivers mentioned in the Rig Veda indicates relation of the Aryans with Afghanistan? Now Kubha and Kramu. Kubha मतलब कि काबुल रिवर. ठीक है, एंड क्रामू रिवर इसका भी अर्लियर नाम था, इट वॉज रिलेटेड टू दी काबुल रिवर ओनली. सो ये कुबा एंड क्रामू, दीज आर दी 2 रिवर्स जो अफ़गानिस्तान के से रिलेशन शो करते हैं. ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी. एंड यस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो टू grow this channel and to support me in some way or the others, you can join the channel, become a member of this channel. Thank you very much for watching this video. Keep studying.